Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to study about the agriculture and the industrial sector, how these sectors were on the eve of independence. So today we'll continue with the first chapter of Indian economy, class 12. So till now we have seen how the Britishers exploited different sectors of our economy. Now further we'll proceed. Let's understand what were the condition or how was our agriculture sector on the eve of independence. Okay, agriculture sector. As you all know, this is our primary sector. Why primary? क्यों main sector consider किया जाता है? Because it supply raw material to the rest of the remaining sector. Now, coming to the point, how it was. So let's see when we got the independence, what was the condition of agriculture sector. So number one was low production and productivity. When I say production means total output. अगर मैं बोलूँ if I have 3 to 4 fields, okay, so my production is the total output I am generating from all the 4 fields. Okay, I hope this is clear. When I say productivity will be per hectare, per field, how much output I am getting from the field is called my productivity. Okay, output per hectare is called productivity, whereas the total output is called the production. Okay, आपको समझ में आ गया? Now, talking about before the independence or around the time of independence, the agriculture sector had a low production as well as low productivity. दोनों चीज ही कम थी हमारी. Okay, now let's see the table and let's compare the situation of on the eve of independence to the present situation. Talking about the crops, we have taken wheat and rice, and one side we have the production and then we have the productivity, and we will compare from 1947 to 2016 to 17. Okay, so in 1947 the productivity of wheat was 660, whereas in 2016 to 17 it was 3216. Productivity is per hectare, output per hectare. तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा increase हुआ है. Similarly, when I talk about production, the total output was 64, which has now increased to 984. I hope you are able to relate to this point that on the eve of independence we have a low production as well as low productivity. So talking about the present situation, we are far better than the time during the eve of independence. I hope the first point regarding the agriculture on the eve of independence, which was low production and low productivity, is clear to you all. Then we have high degree of uncertainty. Uncertainty मतलब हमें नहीं पता कल क्या हो जाए. Very uncertain. Why agriculture sector has the high degree of uncertainty? Because of the excessive dependence on the rainfall or on the monsoon. Our agriculture is monsoon dependent, right? अगर हम आज की बात करें तो आज भी there are several places where the crops or the production of crops entirely depend on the monsoon, right? तो high degree of uncertainty हो जाती है. जैसे कि if I have a good rainfall, then I'll have a good output. अच्छी बारिश हुई है तो अच्छी फसल उगेंगी, ज़्यादा उगेंगी. Whereas the case is opposite if I have the poor rainfall. So poor rainfall means poor output. So talking about the time around 1947, as we all know, we have inherited our country from the British rule, right? Britishers से हमने inherit की है. So no efforts were made by Britishers to develop the permanent means of irrigation. Britishers ने irrigation जैसी जो important requirement थी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया था, कोई efforts नहीं लगाए थे. So in order to develop and make it as a permanent means of irrigation, for example building of canals, wells, ऐसे करके कुछ नहीं बनाया था. No effort was there. Therefore the agriculture sector had high degree of uncertainty. Then we have the dominance of subsistence farming. Subsistence farming क्या है? It is a form of farming in which crops are produced to provide
for the basic needs of the family. For example, if I am a farmer, okay, what crop I will grow? I'll grow wheat, rice. Why? Because these are the crops that will fulfill the basic needs of my family too, right? कि कुछ ये जो फसल जो मैंने उगाई है इसके अंदर से कुछ पहले मैं अपनी फैमिली को दूंगा, राइट भाई, ताकि फैमिली भूखी ना रहे, बिकॉज वीट एंड राइस आर द स्टेपल फूड हियर, सब लोग खाते ही हैं, तो मैं पहले उनकी नीड्स फुलफिल करूंगा, उसके बाद अपने को सरप्लस के बारे में सोचूंगा, राइट? सो बेसिकली दैट टाइम देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग. जो फार्मर है, जो किसान है, he was following the subsistence farming, which means वो ऐसे क्रॉप्स उगाता था जिससे उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली फुलफिल हो जाती. लाइक एग्जाम्पल हियर इज wheat or rice. Okay, then talking about the profit or the surplus for the farmer. सरप्लस क्या रहता है? अगर मैं वीट उगाऊं, ओके, और उसमें से कुछ हिस्सा अपनी फैमिली को दे दूं, उसके बाद जो सरप्लस बचता है, जो अमाउंट बचती है, उसको मैं जाके मार्केट में सेल करूं, एंड फ्रॉम सेलिंग दो सरप्लस आई गेट द इनकम, पैसे मिलेंगे ना मुझे. सो देयर वाज नो सरप्लस लेफ्ट. उस टाइम में कोई सरप्लस या अ वेरी लिटिल सरप्लस वाज लेफ्ट फॉर द फार्मर. क्यों? क्योंकि फार्मर वाज बेसिकली प्रैक्टिसिंग द सब्सिस्टेंस फार्मिंग. उसने मार्केटिंग, उसने इनकम के बारे में नहीं सोचा. प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी थी कि बेसिक नीड ऑफ द फैमिली फुलफिल हो जाए. ओके, सो टॉकिंग अबाउट फर्दर ऑफ द टॉकिंग मोर अबाउट द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस बैकवर्डनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ फार्मर अपना पेट भरने के बारे में सोच रहा है, फैमिली की नीड्स फुलफिल करने के बारे में. ओके, सो अगर बैकवर्डनेस क्यों वर्ड यहाँ यूज किया है? इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ कमाएगा नहीं उस आउटपुट से, क्या उसके पास पैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्दर? आंसर इज नो. कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा आगे आने वाले टाइम में? एग्रीकल्चर के अंदर भी तो चाहिए ना, फार्म मशीन्स चाहिए, सीड्स चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं. सो ये सब चीज़ बना के एग्रीकल्चर को ज़्यादा एक बेटर प्लेस बनाते हैं टू कल्टिवेट द क्रॉप्स, राइट? लेकिन यहाँ कोई भी सरप्लस नहीं था, इनकम हो ही नहीं रही थी. देयरफॉर द एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड है. देयरफॉर इट वाज लीडिंग टू द पोवर्टी मतलब गरीबी थी फार्मर्स में. बेसिकली इस पॉइंट को इफ आई कंक्लूड हियर, इट विल बी फार्मर की कौन सी फसलें उगा रहा है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, और बेचने के बारे में, मार्केट में जाके बेचने के बारे में नहीं सोच रहा है, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में नहीं सोच रहा है. देयर इज अनदर टर्म कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? व्हेन वी ग्रो क्रॉप्स जस्ट फॉर द मार्केट. ओके, जब हम बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है? जाके हम बेचेंगे इस चीज़ को, दैट विल बी कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में सरप्लस ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा होती है. लेकिन at this point of time the farmer was practicing the subsistence farming. Again I am repeating, subsistence farming क्या है? It is the form of farming in which crops are produced to provide the basic needs to the family. Okay, also the next point is there was a gulf between the owner of the soil and the tiller of the soil. Gulf का मतलब है difference. Okay, अब ओनर ऑफ द सॉइल कौन है? इट इज द जमींदार्स, द बिग लैंड लॉर्ड्स हु हैड अ लॉर्ड्स ऑफ लैंड, राइट? एंड द टिलर्स कौन है? द एक्चुअल पीजेंट्स और द लेबर्स हु आर वर्किंग ऑन द सॉइल और ऑन द लैंड. ओके, सो वी हैव नोटिस्ड दैट देयर वाज अ डिफरेंस इन बिटवीन द ओनर एंड द टिलर. Why was there a difference between them? Or why was there a gulf between the owner and the tiller of the soil? It is because of the difference in their interest. उन ओनर का जो इंटरेस्ट था, इट वॉज बेसिकली फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेंटल इनकम. उसका क्या था? भाई जो ज़मीन है जिसपे ये कल्टीवेशन प्रोडक्शन कैरी आउट हो रही है, जो मैंने रेंट पे एक टिलर को दी है, तो उससे मैं मैक्सिमम रेंट निकलवा सकूं, मैक्सिमम इनकम जनरेट कर सकूं. वेयर एज द टिलर्स, द पीजेंट्स और द लेबर्स हु वर वर्किंग रियली हार्ड ऑन द सॉइल got merely for their subsistence, मतलब पूरी मेहनत करके पूरी फसल उगाई. ओके, फसल में से
जो कुछ बचा, कुछ तो फैमिली की नीड पूरी हो गई, ओके, थोड़ी बहुतों की हो पाती थी, पूरी मेयरली मतलब बहुत ही ना बराबर ही उनको सब्सिस्टेंस के लिए मिल पाता था. व्हाई? बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन वॉज गोइंग टू द ओनर इन फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम. जो वो ज़मीन का रेंट देते थे उसमें उनके पैसे निकल जाते थे, देयरफॉर उनके खुद के लिए नहीं बचता था, बहुत ही थोड़ा बचता था. देयरफॉर देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल. Next is the small and the fragmented holding. Holding here stands for the land. Okay, land जो थी टुकड़ों में बटी हुई थी और छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े थे. The pieces of land were lying here and there. Suppose if I am a farmer, अगर मेरी land is आधा कुछ मेरा piece of land is in the city and half of the piece of land is outside the city. ऐसे छोटे छोटे मेरे टुकड़ों में मेरी ज़मीन बटी हुई है. And if I am a farmer, if I want to cultivate the crops, will I be able to cultivate the crops? वो हाफ जो acre of land मेरे पास है उसके ऊपर मैं प्रोडक्शन करूँगी? आंसर इज नो. वाई? क्योंकि आउटपुट उससे कुछ खास निकलेगा नहीं. मेरे को फ़ायदा कब होगा? जब मेरी ज़मीन एक साथ है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, एक साथ है. सपोज दैट हाफ पीस ऑफ लैंड इफ आई पुट टुगेदर इट विल बी वन एकड़ ऑफ लैंड. 1 एकड़ ऑफ लैंड है मेरे पास, तभी तो मैं उससे कुछ कर पाऊंगी, फसल उगाऊंगी, तभी तो मेरी आउटपुट ज़्यादा निकलेगा उससे. जितने ज़्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन रहेगा उतने ज़्यादा आउटपुट निकलेगा. Therefore, another here feature of agriculture on the eve of independence was क्यों हमारी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी कम थी? बिकॉज ऑफ द स्मॉल एंड द फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग. एंड दीज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स आर वेरी अनइकोनॉमिक, ज़्यादा फायदा नहीं करती हैं. एंड अनइकोनॉमिक क्यों थी? क्योंकि उससे काफ़ी लो आउटपुट निकल के आता था. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. देन वी हैव द लैंड रेवेन्यू सिस्टम under the British rule. If you remember your 9th class history, your 8th class history, and in fact your some part of the 10th class history, okay, so we have been studying different type of land revenue system under the British rule, right? The Britishers ने India के अंदर when they were ruling here, they introduced various land revenue system. और लैंड रेवेन्यू क्या है? ज़मीनों से रेवेन्यू जनरेट करना, लैंड से रेवेन्यू जनरेट करना. ओके, so basically they have introduced a triangular relationship. Triangular relationship मतलब the between the tiller of the soil and the government. Who played a very important role? It was the owner. Owner कौन थे? The zamindars. Therefore, this triangular relationship was called the zamindari system. Why? क्या था ये जमींदारी सिस्टम and why this was not considered as a good system? Let's see that. The zamindars were considered as the permanent owners of the soil. Okay, तो ये permanent owner, इनको owner समझा जाता था जमींदार्स को. And they were supposed to pay the fixed amount. ये कुछ fixed amount of land revenue किसको देते थे? गवर्नमेंट को. एंड ऑल्सो उनकी एक और ड्यूटी थी, एक तो गवर्नमेंट को पे करना, दूसरा से रेंट जनरेट करना. सरकार जो ब्रिटिशर्स थे, ड्यू टू द कम्युनिकेशन गैप, दे थॉट कि दे वॉन्ट बी एबल टू इंटरैक्ट विद द टिलर्स, देयरफॉर दे असाइंड द ड्यूटीज टू द जमींदार्स. भाई ये तुम्हारा काम है, तुम्हें जाके टिलर्स से पैसे निकलवाने हैं. एंड दे वर हियर were free to extract as much as the money from the tillers. वो अपने हिसाब से पैसे निकालते थे टिलर्स से. ओके, मैक्सिमम रेंट, कोई रेंट फिक्स नहीं था. टाइम टू टाइम दे यूज टू कीप चेंजिंग द रेंट. जब फसल अच्छी हुई ज़्यादा रेंट लगा दिया, कम हुई तो थोड़ा कम कर दिया. ओके, सो जो ओनर ऑफ द सॉइल था, दे वर एक्सप्लॉइटिंग टिलर्स और अपनी मन मर्जी की रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे. सपोज इन्होंने यहाँ 1000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया टिलर्स से. एंड आउट ऑफ दिस द अमाउंट दे वर सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट, जो ओनर जो ज़मींदार है जो गवर्नमेंट को देता था, ब्रिटिशर्स को देता था, इट वॉज अ फिक्स्ड अमाउंट. सपोज इट वॉज फिक्स्ड एट ₹500. तो 500 रुपये का फ़ायदा किसको हुआ? ओनर को. देयरफॉर दिस मिडलमैन द ज़मींदार was getting rich day by day, and this type of relationship was known as the triangular relationship.
नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, इस चीज से क्या हो रहा था, द पीजेंट्स वर अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेड, ओके, अनलिमिटेडली दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द जमींदार्स. सो इसका कंक्लूजन क्या है, क्यों फार्मर्स पुअर थे, व्हाई दे वर पुअर, व्हाई द पॉवर्टी वाज सो प्रोमिनेंट इन आवर नेशन, बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट्स by the owner of the land or the soil. And who was the owner of the soil? It was the zamindars. So next point is, there was commercialization in agriculture, but it was a forced commercialization. Forced matlab peasants, जो farmers थे here in India, they did not want to practice commercialization. Why? Because they were doing the subsistence farming. Subsistence farming क्या है, अपनी फैमिली की नीड फुलफिल करने के लिए खेती करना. लेकिन when the Britishers came, they now forced the farmers to go for forced commercialization. For example, if you remember your 8th or 9th class history, you will remember that we have read one indigo or the blue revolution in 8th class, and it was why the Britishers came to India and they realized that they could now ask the ruler or the men in the countryside to grow indigo for their nation. क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिगो क्या है, इट इज अ कलर यूज्ड फॉर डाइंग, ओके, डाइंग द क्लोथ्स इन रिच ब्लू कलर. तो उस टाइम पे इसकी इंडिगो की डिमांड बहुत ज्यादा थी. देयरफॉर दे फोर्स द फार्मर टू ग्रो इंडिगो, क्योंकि ज्यादा डिमांड है, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ब्रिटिशर्स को ज्यादा फायदा होगा. एंड ऑल्सो जो बेचारे पुअर पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, अब ब्रिटिशर्स के लिए इंडिगो उगाने के लिए सपोज उनकी पॉलिसी थी, दिस वाज द लैंड. अब इंडिगो मोर देन हाफ ऑफ द लैंड पे उगाया जाता था, दिस वाज इंडिगो. एंड ये वाली हमारी होती सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो फार्मर कर रहा है. ओके, अर्लियर द होल ऑफ द फील्ड, पूरे फील्ड में क्या होता था, वीट या राइस उगाई जाती थी. लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया. सो पहली स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लाइन थे, अब बिल्कुल ही इतना हिस्सा कुछ बचा उनके पास अपनी सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने के लिए. देयरफॉर उनकी प्रोडक्शन गिर जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और क्योंकि इंडिगो अब उनको ग्रो करना पड़ रहा है. एंड ऑल्सो अनदर फैक्ट अबाउट इंडिगो वॉज, इंडिगो तब उगाया जाता था आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो द सॉइल वॉज लेफ्ट अनफर्टाइल. सॉइल बिल्कुल अनफर्टाइल हो जाता था एंड इट वॉज नॉट एट ऑल गुड फॉर द फर्दर कल्टिवेशन. तो उसको इस सॉइल को खाली छोड़ना पड़ता थोड़े टाइम के लिए, सो दैट इट कुड रिगेन इट्स फर्टिलिटी. ओके, सो देयर वाज अ फोर्स्ड commercialization of agriculture. I hope this point is clear. So if I want to conclude the agriculture, how it was on the eve of independence, then we would say it was backward and stagnant. Okay, backward and stagnant. Stagnant मतलब कोई growth नहीं थी, रुका हुआ, जहाँ था वहीं था. और backward मतलब बहुत ही बुरी condition में. So अगर मुझे justify करना हो इस statement को, there are chances that this statement can come. In order to justify it, mark it as an important question कि why agriculture was backward and stagnant. अगर backward word को आपको justify करना है, you need to mention the point number 1, 2, 3 and 5th. Okay, so these are the points that will justify the backwardness of agriculture. Let me just tell you, the point number 1 was low production and productivity. Point number 2 is high degree of uncertainty, and point number 3 was dominance of subsistence farming, and 5th was small and fragmented land holding. I hope till now the backwardness of agriculture is justified. दोबारा repeat करने के same points के there is no use. Just go through the points and mark point number 1, 2, 3 and 5th as backwardness. Reason for the backwardness of agriculture. Now coming to the reasons for stagnant agriculture, the points are point number 4, 6th and 7th. Point number 4 was the gulf between the owner of the soil and the tiller of the soil. Then 6th is land revenue system under British rule, and 7th was forced commercialization of agriculture. I hope till now you have understood how our agriculture sector was on the eve of independence. Now let's switch on to the next important sector, which is our industries. So if I talk about our industrial sector or our secondary sector on the eve of independence, there is this word
which is the systematic deindustrialization, which describes the condition of industrial sector. Now you must be wondering, what is this systematic deindustrialization? So whenever you will read this word, it will mean two major things. One is there was a decade of world famous traditional handicraft market. वर्ल्ड की सबसे फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ से जाते थे? इट वॉज फेमस फॉर आर कंट्री इंडिया. इंडिया वॉज फेमस फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड ड्यू टू द ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज देयर वॉज अ डीके. डीके मतलब खराब हो गई, बिल्कुल ही इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी. एंड सेकेंडली this word talks about the bleak growth. Bleak means the slow or the notional growth of industrial sector. And why there was a slow or a notional growth of the industrial sector? Because we lacked the investment. We did not have money to invest in this sector. Therefore, when I say industrial sector on the eve of independence, this word should come in your mind, which is the systematic deindustrialization. And by systematic deindustrialization, we mean two major points. One is the decay of world famous traditional handicrafts, and second is the bleak growth. Okay, now let's see each point in brief. What were the reasons for the decay and the bleak growth of the industrial sector? Understand what were the reasons behind the decay of Indian handicraft. Okay, अभी हमें क्या पता है कि इंडिया इज नोन वर्ल्ड वाइड फॉर द फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, राइट? तो हम देखेंगे ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वाली जो इंडस्ट्री थी ये कैसे खत्म हुई, कैसे इसका डेके हुआ. ओके, सो नंबर वन रीजन हियर इज द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द टैरिफ पॉलिसी. सो ब्रिटिशर्स ने बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. टैरिफ क्या होता है? टैक्स. भाई जो टैक्स लगेंगे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे, वो अब हम देखेंगे एंड हाउ इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी. लेट्स सी दैट. टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, ओके, द गुड्स दे यूज्ड टू टेक फ्रॉम आवर नेशन, दीज वर द रॉ मटेरियल्स. ओके, ये जो रॉ मटेरियल हम लोग ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करते थे, एंड ऑल्सो द फिनिश्ड गुड्स, वहाँ से जो फिनिश्ड गुड्स बन के आते थे जिनको हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटिश नेशन से, ऑल ऑफ दिस गुड्स वर टैरिफ फ्री. इन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई ड्यूटी नहीं लगती थी. Whereas when it came to इंडियन और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, जब हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो हम अपने नेशन से दूसरे वर्ल्ड वाइड नेशन में बेचते थे. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर इम्पोज्ड बाय हेवी ड्यूटी. उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, मेकिंग देम एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव होगा तो कोई खरीदेगा नहीं. देयरफॉर कॉम्पिटिटिव मार्केट थी, कंपटीशन में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स नीचे आ जाएंगे और हमारी जो धीरे धीरे करके जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, इट विल स्टार्ट डिकेइंग, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, और एक टाइम आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और ब्रिटिशर्स विल टुक ओवर द मार्केट. ओके, द सेकेंड रीजन वॉज द डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. पहले हर रीजन वाइज राजे महाराजे होते थे, प्रिंसेस होते थे, प्रिंसली स्टेट्स थी. अब क्या हुआ? अब डिसअपियरेंस हो गई. अब कोई खास प्रिंसली स्टेट्स बची नहीं थी. ये नहीं थे तो पुराने टाइम में क्या थी? अगर फॉर एग्जांपल देयर वाज वन प्रिंसली स्टेट, फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे कि हमारी पंजाब की स्टेट ले लेते हैं. ओके, सो पंजाब में जो महाराजा ऑफ पटियाला, एक प्रिंसली स्टेट हो गई उधर पटियाला. सो वो पटियाला के अंडर जो भी गुड्स हैंडीक्राफ्ट्स आते थे वो जाने जाते थे भाई अच्छा ये पटियाला से है, राइट. लेकिन अब क्या हुआ? प्रिंसली स्टेट्स गायब हो गई, राजे महाराजे नहीं रहे. देयरफॉर जो रीजन वाइज जो छोटे छोटे रीजन्स होते थे, वहाँ जो इम्पोर्टेंट जो उनके फेमस हैंडीक्राफ्ट होते थे वो भी बहुत फेमस रहते थे. अच्छा ये पटियाला से है, ये महाराष्ट्र का है, ये यहाँ से है. ओके, तो ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो गई. ओके, क्योंकि अब कोई राजा नहीं रहा था, कोई प्रिंस नहीं रहा, कोई प्रिंसली स्टेट्स नहीं रही. तो देयरफॉर ऐसे जो हर रीजन वाइज जो फेमस चीज़ें थी उन वो भी डिसअपियर होती चली गई, ख़त्म होती चली गई. ओके, थर्ड पॉइंट हियर इज
द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स. अभी मैंने क्या बताया, ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट करते थे. ओके, सो फिनिश्ड गुड्स की जब मैं बात करती हूँ तो मशीन मेड्स आती थी वहाँ से, तो क्योंकि वो तो डेवलप्ड नेशन थे ना, तो मशीन्स थी उनके पास. अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझो कि अगर एक शर्ट इंडियन मार्केट में बनती है, इंडियन मार्केट में क्या है, हैंडमेड गुड्स बनेंगे, टाइम लगेगा हर चीज़ को बनने में. वेयर एस वही गुड ब्रिटिशर्स से वहाँ से जब हम इंपोर्ट करते हैं वो मशीन मेड गुड्स है. मशीन मेड गुड है, एक तो थोड़ा सा सिलाई वगैरह में अच्छी रहेंगे, ऑल्सो वो थोड़े चीप पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि मशीन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है. वेयर एज व्हेन इट कम्स टू लेबर और व्हेन इट कम्स टू वर्किंग मैनुअली इट टेक्स टाइम. ओके, और टाइम लगेगा जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ऑब्वियसली उसका थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि मेहनत लगी है ना पूरी. तो therefore there was a competition from the machine made goods. The machine made good मार्केट में आई, these goods were relatively cheaper, थोड़ी चीप थी. Therefore we had to face a tough competition from the machine made goods, leading to the decay of Indian handicrafts. And fourth here is new pattern of demand. Talking about the new pattern of demand, अब क्या हुआ, सोसाइटी में चेंज आ रहा था, न्यू गुड्स आ रहे थे मार्केट में. ओके, देयरफॉर पैटर्न ऑफ डिमांड भी चेंज हो रहा था. पीपल हियर इन इंडिया स्टार्टेड अडॉप्टिंग द वेस्टर्न लाइफस्टाइल. वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना शुरू किया. देयरफॉर पैटर्न इन डिमांड चेंज्ड. अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को कोई लेना पसंद नहीं कर रहा था बिकॉज द पीपल हियर वर अडॉप्टिंग द वेस्टर्न कल्चर. एंड लास्टली वी हैड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. आप सोचोगे तो बड़ा अच्छा है, इंट्रोडक्शन रेलवे हुई है, रेलवे विल मेक द ट्रांसपोर्टेशन ईजियर, देयरफॉर ये तो अच्छा होना चाहिए था. लेकिन थिंक हियर, रेलवेज क्यों उन्होंने इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स ने, क्या रीजन की, जैसे इंडिया को डेवलप करने के लिए की होगी रेलवेज? आंसर इज नो. रेलवेज वर इंट्रोड्यूस सो दैट दे कुड कैरी द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. And similarly, when it comes to the import of finished goods, the import of finished goods could be circulated to each and every part of the nation. Therefore, they introduced railways. रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, इजीली माल को एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाएगा, और जब गुड्स उनके देश से आएंगे तो इजीली दैट गुड्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट. एंड सो दीज वर द रीजंस which led to the decay of Indian handicrafts. Then let's discuss the bleak growth of industry. Which industries? The modern industries. Okay. So bleak का मतलब क्या है? Very notional growth या not so encouraging growth हो रही थी हमारे industrial sector में. क्यों? What was the major reason? It was due to the lack of investment. Okay. Now talking about the modern industries, क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 and 2 हो रहे थे. ओके, 1 तो हो चुका था, 2 भी हो चुका था और टुवर्ड्स दी बिल्कुल ख़त्म होने वाले टाइम पे था. तो हम बात करें इस टाइम पे, ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर 1 and 2, सम ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड और वर ओपनड हियर इन द इकोनॉमी. बट दिस मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर ओपनड बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेस. प्राइवेट जहाँ आएगा इट विल वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव. Whereas the government, when it will come, it will work for the social welfare, right? ये हमेशा ध्यान रखना. For example, like iron and steel, cement, sugarcane, etc. These were the modern industries which were introduced at this time. But all of these industries were set up by the private enterprises. Now, talking about the state or the government participation, it was very limited. जो सरकार की पार्टिसिपेशन थी इट वॉज वेरी लिमिटेड. हु वॉज द गवर्नमेंट एट दैट टाइम? इट वॉज द ब्रिटिशर्स रूलिंग, राइट? सो उनकी पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और उन्होंने कुछ खास किया नहीं जिससे कि हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हो सके. सो द स्टेट पार्टिसिपेशन वॉज ओनली इन द फील्ड ऑफ रेलवेज, पावर जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल ऑफ दिस रीजन, इफ़ यू सिट एंड थिंक, ये सारे रीजंस किसके फ़ायदे के लिए हैं? ब्रिटिशर्स के खुद के फ़ायदों के लिए. अच्छी रेलवेज होगी तो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन होगी, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाएंगे, दैट ऑल्सो वेरी क्विकली एंड एट अ लोअर कॉस्ट. पावर जनरेशन है तो क्या होगा, अच्छी मशीन्स वगैरह चल पाएंगी.
डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स हैं, तो अब हमारे देश से दूसरे देश में सामान ले जाया जाएगा, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज आल्सो डेवलप्ड in order to track the things happening in the nation. Now, so state participation आपने देखा सिर्फ इन सब केस में था. Apart from that, no efforts were made to develop our industries. Okay, and also talking about the capital good. Capital good कौन से होते हैं? These are the goods used in the industrial sector, right? Just like plant, the machines, ऐसी वाली चीज़ें कुछ भी हमारे यहाँ डेवलप नहीं की गई थी. सो इफ आई हैव टू कंक्लूड द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आई वुड से दैट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड. देयर वाज अ ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. व्हाई? बिकॉज वी लैक्ड द इन्वेस्टमेंट. And talking about the capital goods, which are the core industries for the development of a nation. core मतलब बहुत ज़्यादा important. ओके, वो वाली इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? कैपिटल गुड्स. सो द कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वर नॉन एग्जिस्टेंस. आई होप में आए. तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट सब हेडिंग के अंदर उसको डिस्क्राइब करना होगा. पहले डेके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, एंड सेकेंड इज द ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज. सो guys, this is it for today's video. We'll continue this chapter tomorrow. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video, then do not hesitate to press in the thumbs up icon under my video. And also guys, like, share and subscribe to our channel and help us grow each day. Thank you for watching.